Dear students, if you want perfection in topic of cash flow from investing activities, you need to concentrate. While calculating cash flow from investing activity, we need to find these two amounts, namely the amount paid towards the purchase of an asset and the amount received from the sale of an asset. In case of purchase, हमने payment किया होगा, therefore it will be deducted from cash flow from investing activity. And in case we have sold an asset, we have received the amount and it will lead to inflow of cash. Therefore, cash flow from investing activity में हम add कर देंगे. But directly question में ये mention नहीं किया होगा. Then we need to prepare an asset account. बाकी सारे amount put कर देंगे और balancing figure हमें मिलेगा. This method is to be used when there is no provision for depreciation or accumulated depreciation mentioned in the question. In case question states about the provision for depreciation or accumulated depreciation, then we need to prepare different accounts. So without a provision for depreciation or accumulated depreciation, mind well, the same format can be used for land also, but that is not depreciable. So उसमें depreciation हम put नहीं करेंगे and the same format can be used for investments also. Again उसमें भी depreciation नहीं लगेगा लेकिन बाकी सारे item cover होंगे. तो this is a general format, right? This is an asset account. Debit side में asset बढ़ेगा तो debit side में record करेंगे और asset कम हो रहा है तो credit side में record करेंगे. As we can see, debit side में वो items लिखे गए हैं जिनके कारण asset increase हो रहा है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट और परचेस किया और प्रॉफिट पे बेचा तो इंक्रीज कैसे हो रहा है, ज़्यादा वैल्यू पे बेचा ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, ओके इंक्रीज हो रहा था. देयरफॉर डेबिट साइड में. क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन एसेट यूज़ हो रहा है, बेच दिया हमने, लॉस हुआ, वैल्यू उसकी कम हो गई, तो ये क्रेडिट साइड में देख रहे हैं कौन सा आइटम है, दैट विल डिक्रीज इन एसेट. तो इंक्रीज, डिक्रीज, इनकमिंग, आउटगोइंग, और आउटगोइंग कैसे हो सकता है, कोई एसेट को हमने यूज किया हो, डेप्रिसिएशन, और किसी और को बेच दिया हो, सेल. In order to use this asset account, you need to be familiar with some basic terms. Let us understand those terms with the use of an example. सपोज हमने कोई एसेट परचेस किया 50,000 पे, दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट. एक साल हमने यूज़ किया, सपोज डेप्रिसिएशन है एक साल का 10,000. अब बताओ एसेट की वैल्यू कितनी बच गई, 40,000, राइट. फिर सेकेंड ईयर फिर से यूज़ किया 10,000 का, अब इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 30,000, राइट. फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर फिर से यूज़ किया और डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, अब कितनी वैल्यू बच गई, 20,000. सपोज मेरे बच्चों थर्ड ईयर ये है हमारा अकाउंटिंग ईयर. वी आर प्रिपेयरिंग दिस एसेट अकाउंट फॉर द थर्ड ईयर, राइट. नाउ अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म. द फर्स्ट टर्म इज ओरिजिनल कॉस्ट. व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट वाज 50,000, राइट. What was the depreciation for the first year? 10,000. For the second year, 10,000. For the third year, 10,000. What was the WDV? WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू. At the beginning of first year बचा हुआ वैल्यू तो 50,000 था क्योंकि यूज ही नहीं किया था. WDV at the end of first year बची हुई वैल्यू 40,000. WDV at the end of second year 30,000. WDV at the end of third year 20,000. WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, बची हुई वैल्यू. Now, accumulated depreciation or provision for depreciation means total depreciation. Cumulative. तो फर्स्ट ईयर तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, 10,000. सेकेंड ईयर तक कितना लगा, 20,000. थर्ड ईयर तक कितना लगा, 30,000. दिस इज द accumulated depreciation. तो सर accumulated depreciation 30,000 है? नहीं, that depends. अगर फर्स्ट ईयर के एंड पे सोच रहे हैं तो यस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 10,000. सेकेंड ईयर के एंड पे सोच रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 20,000. एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 30,000.
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको क्यूमुलेट करते जाइए। सपोज थर्ड ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग WDV, ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, WDV दैट इज बचा हुआ वैल्यू। व्हाट वाज द रिटर्न डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर? 30,000, right? What was the depreciation for the current year, third year? 10,000. Then what was the closing value at the end of the third year? Closing WDV. I mean to say हमें यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिखना है, ओपनिंग WDV लिखना है। ईयर के बिगनिंग पे बचा हुआ वैल्यू कितना था। सेकेंड, परचेज, यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज, और ओरिजिनल कॉस्ट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, उन सबको ऐड कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट में। अगर हमने ये पेमेंट दे के परचेज किया हो तो टू बैंक, और अगर क्रेडिट पे परचेज किया हो तो टू वेंडर। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर कोई एसेट हमने बेचा हो ड्यूरिंग द ईयर और उस पर प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट सेल प्रोसीड्स। नेट सेल प्रोसीड मतलब कुल मिला के कितने में बेचा। सर कुल मिला के मतलब सपोज हमने 20,000 में बेचा, लेकिन किसी एजेंट के थ्रू बेचा, बेचने पर एजेंट ने कमीशन लिया 2,000 का, तो बेच के हमें कितना मिला, 18,000। दिस इज द नेट सेल प्रोसीड्स। तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन नेट सेल प्रोसीड्स एंड WDV। WDV मतलब जिस दिन हम एसेट को बेच रहे हैं उस दिन उसका बचा हुआ वैल्यू कितना है। तो सपोज जिस दिन हम एसेट को बेच रहे हैं उस दिन उसका बचा हुआ वैल्यू है, बचा हुआ वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, 25,000, और उसको हमने बेचा 27,000 में, तो 27,000 हैपन्स टू बी नेट सेल प्रोसीड्स लेस WDV 25,000। सिंपली 25,000 की चीज़ 27,000 में बेची तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। 2,000 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्रिसिएशन, करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। जो एसेट अगर हमने बेचा ड्यूरिंग द ईयर उसके ऊपर इस साल का कितना डेप्रिसिएशन लगा। करंट ईयर डेप्रिसिएशन, टोटल से हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विदाउट, राइट। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड बाय बैंक, कोई एसेट बेचा हो तो नेट सेल प्रोसीड्स यहाँ पर लिख देंगे। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर जो एसेट हमने बेचा वो लॉस पे बेचा, वो ये लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज WDV वॉज 25,000 बचा हुआ वैल्यू एसेट का, और हमने बेचा उसको 23,000 पे, तो 25,000 की चीज़ हमने 23,000 में बेची तो 2,000 का लॉस, कम में बिका ना लॉस, इसलिए एसेट की वैल्यू कम हो रही है। फिर डेप्रिसिएशन, सर दो बार क्यों है, ये डेप्रिसिएशन है करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, और दिस इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन ऑल अदर एसेट्स जो अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं, राइट। एंड बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग WDV, ईयर एंड पे जो एसेट बच गए हैं उनका WDV बचा हुआ वैल्यू। ना क्वेश्चन में बाकी सारे फैक्ट्स दिए होंगे, हमें कोई मिसिंग फिगर पता करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, इस साइड है तो वो परचेस होगा, इस साइड है तो सेल होगा, या कुछ और। सपोज क्रेडिट साइड में आपको कोई मिसिंग फिगर मिल रहा है, या तो वो हो सकता है बेचा हो बाय बैंक, या डेप्रिसिएशन लगा हो। तो याद रखिएगा, अगर इन दोनों में से सिलेक्ट करना हो कि ये जो मिसिंग फिगर आया है बैलेंसिंग फिगर वो नेट सेल प्रोसीड है कि करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन है, तो आपको करंट ईयर डेप्रिसिएशन मानना पड़ेगा, अगर कुछ और मेंशन ना किया गया हो तो, और इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो। रीज़न अगेन, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, हम उसको रेगुलर बेसिस पे बेचते नहीं हैं, हाँ, लेकिन यूज़ ज़रूर करते हैं तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। इन केस अगर ये कोई मशीन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट है या लैंड है, हाँ, तो फिर उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो फिर ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो नेट सेल प्रोसीड होगा।